Good afternoon. My name is Sarvina, and I've been receiving many mails and many queries, even through some comments. So I'll try my best to answer some of them. I'm hopeful कि अब तक आप सभी को communication मिल गया होगा from your respective institutes, जिसमें आपके willingness letter होगा, medical के लिए होगा. So I'm hoping that you guys must have received it and you guys are getting ready to join in the institutes. So कुछ queries, I'll try my best to answer some of them. First, I'll be discussing upon the comments. So, first comment is, after receiving the joining letter, should we start the process of resignation from our department or wait till confirmation? आपको अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट आ गया है, रिसीविंग द ज्वाइनिंग लेटर, तो उसके बाद तो यू हैव टू. सेकेंड इज, इन हेडक्वार्टर देयर आर 4 places of joining. How will they allocate the 70 candidates? I cannot say. Headquarters का I am not the concerned person, so I cannot say. Sir, please tell us about NRCSS अजमेर इंस्टीट्यूट. मैं गया नहीं हूँ अजमेर के इंस्टीट्यूट में, बट आई थिंक इट्स गुड इंस्टीट्यूट. म्यूचुअल ट्रेनिंग के क्या रूल्स हैं ICR में, प्लीज़ एक बार डिटेल वीडियो बनाइए. म्यूचुअल ट्रेनिंग क्या है मुझे यही नहीं पता. म्यूचुअल ट्रेनिंग मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि साथ में ट्रेनिंग करना है, वो तो होता ही है नॉर्मल ट्रेनिंग में. मैनी कैंडिडेट्स आते हैं, अकेले आदमी की तो ट्रेनिंग होगी नहीं. इसमें मेडिकल होता है क्या? जो लेटर आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा मेडिकल के लिए, डेफिनेटली होगा. जॉइनिंग ऑर्डर कब तक इशू होंगे? जॉइनिंग ऑर्डर विल डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच वेर यू आर अलोकेटेड, एंड जहाँ से आपको लेटर रिसीव होगा उनके रूल्स पर डिपेंड करेगा. प्लीज़ शेयर द लेटेस्ट सैलरी स्लिप. मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है. DA अभी 50% है एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली, एंड तो अगर आपका बेसिक मान लीजिए 40,000 है तो उसके ऊपर DA 20,000, 50% जो होता है वो 20,000 होता है. सो DA प्लस बेसिक 60,000 हो गया. उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिटी वेर यू आर पोस्टेड, एंड HRA होगा. सो ये दोनों मिला के 60,000 के ऊपर ये दोनों मिला के मिलेगा. अगर आप क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो HRA नहीं मिलेगा, वरना HRA मिलेगा. ठीक है. इज देयर एनी अपकमिंग रिक्वायरमेंट? आई कैनॉट से. माई रिजल्ट इज विदहेल्ड. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन द लास्ट वीडियो. एनीवन फ्रॉम माई HR Bangalore? I don't know, but it's a good institute. I would recommend. It's a very good institute. I got SBI Coimbatore. Will I get any research center instead of this? I cannot answer it. As I've said in earlier videos, director of that concerned institute is the competent authority to transfer the assistants within that institute. I'm working in EPO currently. Can I take a technical resignation? Why not? When I appeared for DV, ये तो मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ सर आपके क्वेरी का. What is the mailing address? You guys can see. अभी recently अभी बताऊँगा मैं. सर इसमें ट्रेनिंग भी होता है क्या? यस, ट्रेनिंग होता है. जनरली असिस्टेंट्स के लिए बिगिनिंग में नहीं होगा, बट आफ्टर यू ज्वाइन विद इन अ पीरियड से 1 or 1.5 years आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, बैचेस में बुलाया जाएगा. एंड 1.5 to 2 months की शायद ट्रेनिंग होती है. ये कई क्वेश्चन आई ऑलरेडी आंसर्ड. ठीक है. नाउ गेटिंग बैक टू द मेल्स, मेनी मेल्स आर देयर. आई विल ट्राई. कुछ आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर सम ऑफ देम. हेलो, हाय. As you know, ICR Institute allotment has been done for assistants. I've already said the seniority is based on the basis of the rank which you've got up to a certain date, cut-off date. अगर वो date के बाद आप join करेंगे, then you will have a loss. ठीक है. Otherwise, no problem. Okay. So this one is the person is from Karnataka. He is from Uttarakhand and is working as a PO in some public sector bank. In semi-urban branch of Karnataka. Okay. Posted in Karnataka from Uttarakhand he is. Okay, so there is too much workload, I understand. I have been allocated MCMR Hyderabad. So I would like to know whether there would be any language barrier in Hyderabad, which I have to face every day in my present job. सर आप पहले कर्नाटका में पोस्टेड है, वहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हो रहा तो यहाँ क्या फील होगा? बोथ आर सिमिलर ऑलमोस्ट, कर्नाटका एंड हैदराबाद. सो आई डोंट थिंक सो आपको इशू होगा. आप वहाँ पे सेमी अर्बन ब्रांच में है, अभी हैदराबाद में आप एकदम अर्बन सिटी में है, तो यहाँ तो और भी कम इशूज़ होने चाहिए. So will I be posted in Hyderabad city? Or अगर उनके रीजनल सेंटर है उस इंस्टीट्यूट के, so there could be a possibility in future that you might get posted to those regional centers. If you could provide contact details of any person in your knowledge who is working in that institute, I don't know. अगर होगा then I'll let you know. ठीक है. Next query है, currently working as LDC in Textile Ministry Jodhpur. Okay. He is currently working in Jodhpur. IHR मिला है, congratulations. क्या लीव कैरी फॉरवर्ड होगी? अगर आप क्या लीव्स कैरी फॉरवर्ड होंगी? इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, तो लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है. आई हैव एक्सप्लेन इन दैट वीडियो, अर्लियर वीडियो, यू गाइस कैन सी. जोधपुर से जयपुर क्यों जाना है आपको? जोधपुर से जयपुर जाने का ट्रांसपोर्टेशन क्यों मिलेगा? आपकी तो पोस्टिंग IHR बेंगलुरु में हुई ना, जयपुर क्यों मेंशन है? क्या IHR बेंगलुरु में रेसिडेंशियल क्वार्टर मिलेंगे? यू कैन गेट, यू मे नॉट गेट, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. क्वार्टर्स होते हैं बट नॉट नेसेसरीली यू माइट गेट इट, क्योंकि क्वार्टर्स वेकेंट भी होने चाहिए, है ना.
फोर्थ इज मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा बनाना पड़ेगा, यू गाइज विल कम टू नो, जो आपके इंस्टीट्यूट से जो लेटर आएगा उसमें मेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम वर्किंग एज टैक्स असिस्टेंट इन CBDT शिमला, ओके। विल इट बी परमानेंट इन दिल्ली और ट्रांसफरेबल? आपको कौन सा IRA में मिला है ना, सो वेरी हाई चांसेस यू विल बी इन दिल्ली ओनली। इट डिपेंड्स फ्यूचर में, अगर आपके डायरेक्टर उस टाइम पे कहते हैं, मतलब इफ ही विशेस टू ट्रांसफर यू और गेट्स यू ट्रांसफर, देन यू माइट हैव टू लीव लेटर ऑन, बट उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, आई डोंट थिंक सो। इफ ट्रांसफरेबल देन इट इज़ I cannot answer this question right now. Is there any bond? No bond as of now. What are the duties assigned to the assistant? Office timing, I've already explained in my earlier videos. Office timings are from 9:30 to 5:30. Sorry, 9 o'clock to 5:30, 9 a.m. to 5:30 p.m. Scope of promotion, I've already explained in my videos. Is this post government job or private? It's a government job. ठीक है. I have queries regarding ICR. When can we accept cadre unification? जब भी आएगा you can accept it. When कैन बी गेट अपॉइंटमेंट लेटर? आपको अभी तक शायद कॉन्टैक्ट कर चुके होंगे इंस्टीट्यूट वाले, यू विल कम टू नो वेरी सून इफ इन फ्यूचर यूनिफिकेशन हैपन्स। आई कैन नॉट आंसर दिस। व्हाट आर द प्रमोशनल एस्पेक्ट्स इन ICR हेडक्वार्टर्स? सर मैं हेडक्वार्टर्स में नहीं हूँ, सो आई मे नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो इट्स बेटर इफ आई डोंट आंसर इट एट ऑल। हेडक्वार्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ओके, नाउ दिस वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। आई एम वर्किंग एज एन एग्जामिनर इन इंडियन कस्टम्स इन मुंबई। भाई जहाँ तक मुझे पता है एग्जामिनर में बहुत फास्ट प्रमोशन है। आफ्टर एग्जामिनर यू गाइज बिकम अप्रेजर एंड देन फ्रॉम अप्रेजर यू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर IRS ऑफिसर्स। सो प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं, ओके। बट अब इनका ऑलरेडी ही इज़ इन 4600 ग्रेड पे, ठीक है। मेन क्वेश्चन है विल इट बी बेनिफिशियल टू कम टू 4200 ग्रेड पे फ्रॉम 4600 ग्रेड पे, एज माई होम इज़ 130 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ही हैज़ गॉट IRA दिल्ली। अब भाई आप क्यों लोअर ग्रेड पे में जा रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ होम पोस्टिंग? तो ये मेरे हिसाब से आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि होम पोस्टिंग के लिए आप छोटे लेवल वाली जॉब पे आओगे, सीधा लेवल 7 से लेवल 6 पे आ रहे हो। सो मेरे हिसाब से डजंट मेक सेंस, बट इट्स योर विश, आपकी इच्छा है तो आप जाइए, वो एम आई टू स्टॉप, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड विद 46? आई कैन नॉट आंसर दिस, आई डोंट नो। चांसेस मेरे कहने से नहीं होगा। इफ़ आई से 100% ज़रूरी नहीं कि हो जाए, इफ़ आई से 90% ज़रूरी नहीं है कि 90% हो। सो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। CGHS facility है, yes, will be in Delhi. I cannot answer this. It depends on the director of your institute. I'll try my best to answer a person's number to you, and I'll reply to your mail. Okay. ये KVK के regarding question है. Very interesting question. That person is the only assistant selected in the KVK. तो KVK is like a very small कृषि विज्ञान केंद्र, छोटा सा एक सेंटर टाइप होता है जिसमें एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ नॉर्मली होती है। सो वहाँ का जो वर्क होगा, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एसोसिएटेड विद द वर्क इन KVK, आई वोंट बी एबल टू आंसर इट प्रॉपर्ली। क्वार्टर्स, इट कुड बी देयर, आई डोंट नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट सर आई विल give a reply and I'll send a contact number of a person who is working, who can give this answer better. So मैं आपको reply करूँगा इसका. Kindly wait for my reply. Okay, I am from UP. I joined SBI as PO in Hyderabad. Already PO in Hyderabad, and he's from UP. Sir, I have been allotted Port Blair. Is there any possibility of getting transferred to UP? It's a very tough thing. I don't know. I can't say. Very difficult. आप देख लीजिए जो आपका इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में है वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो उसका मेन डोमेन क्या है, एंड उसका कोई रीजनल सेंटर यूपी में है या नहीं है. सो यू कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली. आई वोंट से मोर ऑन दिस. ऑल द बेस्ट. आई एम फ्रॉम दिल्ली. अभी दिल्ली का होके इस बंदे को IAWM भुवनेश्वर मिला है. अच्छा, ओके, दिस लेडी, सॉरी, she has been allotted IAWM Bhubaneswar. She is a divorcee and single mother to a 2-year-old daughter. It will be very difficult for me to join there. In Delhi, my mother takes care of my daughter while I am in the office. She is also chronically ill. Currently, I am posted in IB. Madam, is it possible if they consider my case on sympathetic grounds and give me posting in Delhi? And she has enclosed the application which I have written. Please reply. I'm sorry, I wish I could help, but I cannot help. I'm not the concerned person who is dealing with the transfers and postings. So I wish I could help, but I'm helpless in this scenario. I'm very sorry. Next is result में इनका बता रहे कि इन्हें प्रेफरेंस नहीं भरा, बट
उनमें ग्लिचेस थी वेबसाइट में, साइट वॉज नॉट रनिंग प्रॉपरली एंड उनके हिसाब से उन्होंने भरा था। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड तो अभी इनको कहाँ पोस्टिंग मिली है? दी हैज़ बीन अलॉटेड कोइम्बटोर। एक बार आप जाके देखिए तो सही कैसा इंस्टीट्यूट है कोइम्बटोर, SBI कोइम्बटोर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, यू कैन गो देयर एंड टेक अ कॉल योरसेल्फ, है ना। ऑल द बेस्ट। I am working in 2800 grade pay in my hometown, allotted IGFRH Jhansi, which is 650 km from hometown. My joining depends on the promotions. I would like to know maximum minimum time it would take to reach. सर मिनिमम टाइम अगर मैं बताऊं तो आप अगर 3 साल काम करते हो, यू बिकम एलिजिबल टू बी, एंड उस समय कोटा आता है, LDC का कोटा आता है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, एंड यू बिकम एलिजिबल एंड यू क्लियर द एग्जाम एंड देन यू रिकमेंडेड। सो आप 3 साल में WO बन जाओगे, उसके बाद 5 to 6 years में AO, इफ़ यू आर वेरी लकी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन की ये दोनों एक साथ हो। मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ 3 + 6 + अगेन 6 years, आप 6600 ग्रेड पे में एज SAO पहुँच जाएंगे। सो 6 + 6 12 + 3 15 साल में आप पहुँच जाएंगे, बट दिस इज़ द मिनिमम। एंड ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा कि आपको तीनों केस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको सिनेरियो मिल जाए। सो it's the minimum time taken for you. Maximum you cannot say, you never know, but MSCP में ये होता है 10 every after every 10 20 and 30 years का you get an option, आप MSCP में प्रमोट बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। सो मैक्सिमम टाइम इतना लग सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम फ्रॉम जयपुर, इनको अजमेर इंस्टीट्यूट मिल गया, बट ही इज़ वर्किंग एज GST इंस्पेक्टर इन मुंबई। इफ़ आई टेक टेक्निकल रेजिग्नेशन, ये पूछेगा टेक्निकल रेजिग्नेशन का बेनिफिट होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो आई डोंट नो इफ़ यू शुड इवन ज्वाइन, बिकॉज अगेन GST इंस्पेक्टर लेवल 7 की पोस्ट है, आप लेवल 6 पे हैं, एक लेवल नीचे क्यों आना चाह रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट इट्स योर कॉल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दीज issues in my video on technical resignation. I hope that will be useful for you, but मेरे हिसाब से I'm still not able to understand why you are going to a lower post. कोई बंदा लोअर, बहुत ही रेयर सिचुएशन में जाता है, मान लीजिए कोई बंदा अगर सिविल सर्विसेज क्लियर करके उसको ग्रुप B गेजेटेड पोस्ट मिल जाती है, देन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उन जॉब्स में डिफरेंट टाइप का वर्क एटमॉस्फेयर है। आप दानिक्स या दानिप्स में ग्रुप B में भी ज्वाइन करते हैं, वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिसिंग वाले जो जॉब हैं, ग्रुप B होते हुए भी कई लोग उसको ग्रुप A जॉब से ऊपर भरते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। अगर आपको ऐसा कुछ यहाँ स्कोप लग रहा है कि यहाँ भी उस टाइप का चार्म है जो वहाँ से बेहतर है, इट्स योर विश, इट्स योर कॉल, यू कैन ज्वाइन, है ना। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग मेल, ये कल रात को ही मुझे मिला है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। फर्स्ट, आई एम अ फीमेल डूइंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब इन IT, करंटली अर्निंग 2 lakhs per month. Since private jobs don't guarantee any security, would you recommend joining IAR assistant, leaving my current job? मैडम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों आप 2 लाख जॉब छोड़ के 70,000 की जॉब के पीछे आ रहे हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हैड इट बीन, अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए कमा रहे होते और यहाँ पे आपको 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे होते तब तो समझ में आता। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई यू आर ज्वाइनिंग। हो सकता है आपके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हो, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर विलिंग टू ज्वाइन। सो माई बेस्ट विशेज़ टू यू। Are the promotions for IAR assistants lateral or vertical? Vertical ही होंगे, आप vertically प्रमोट होंगे, है ना। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लेटरल मीनिंग इसमें। हाउ लॉन्ग, मैंने प्रमोशन का सारा बता रखा है इन माई अर्ली वीडियोज ऑल्सो। यस, CGHS का बेनिफिट होगा। ग्रेड A और ग्रेड B ऑफिसर तो WO होते ही आप ग्रुप B ऑफिसर रहेंगे। ग्रेड का सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे, ग्रुप B ऑफिसर कह सकते हैं, WO इज अ ग्रुप B ऑफिसर। सो मिनिमम आई सेड 3 years में अगर आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो ग्रुप B ऑफिसर बन सकते हैं। मैक्सिमम टाइम इट कैन टेक 10 years ऑल्सो समटाइम्स। ओके, चंडीगढ़ से हैदराबाद पोस्टिंग मिली है। विल आई बी पोस्टेड हैदराबाद? आई कैनॉट से, डिपेंड्स आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है। आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस। व्हाट इज द ट्रांसफर पॉलिसी इफ आई विश टू गेट एन इंस्टीट्यूट क्लोजर टू माई होम सिटी? जो भी ट्रांसफर पॉलिसी होगी, इट कैन बी विद इन द इंस्टीट्यूट। आप दूसरे इंस्टीट्यूट में आसानी से ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, दैट और फ्यूचर में बन सकती है, वी नेवर नो, बट एज ऑफ नाउ विद इन एन इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र करने के लिए द डायरेक्टर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यस, दे प्रोवाइड रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, व्हाई नॉट, बट इट डिपेंड्स, क्वार्टर्स खाली होंगे तो इट कैन बी प्रोवाइडेड टू यू इफ़ यू अप्लाई फॉर देम। सो दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।